Hello students, welcome again. Till now you have learned the basics of microprocessor. Okay, today I will start 8085 microprocessor in detail. First of all, you should know the specification of any microprocessor. Today our microprocessor is 8085. Its data bus is of 8 bit. What does the meaning of this? It means that it is a 8 bit processor. Okay, what is the data bus is represented its main specification. Okay, 8 bit data bus, it means it is also known as 8 bit processor. What does other meaning? Its other meaning of data bus is that it can process at maximum 8 bit data at a time. एक समय में वो 8 बिट डेटा का प्रोसेस कर सकता है इन ALU. ओके, 8 बिट डेटा का ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम मेमोरी टू ALU एंड फ्रॉम ALU टू मेमोरी प्लेसेस. 8 बिट डेटा को डिस्प्ले कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डेटा बस टू आउटपुट पोर्ट. 8 बिट डेटा इनपुट एज ए इनपुट रिसीव हो सकता है एट ए टाइम through data bus from input device. And the third meaning of data bus is that instruction set. How many instruction set can be supported with this 8085 microprocessor? It can be described with the help of data bus. Its data bus, and you know that its data bus strength is of 8 bit. It means it can support at maximum 2 to the power 8. It can support at maximum 2 to the power 8 number of instruction set, which is equals to 256. Okay, means for imagine if there are 3 bits. Okay, from these 3 bits there will be a maximum 2 to the power 3 means 8 patterns. And if data bus system is 8 bit, then with the help of these 8 bits 2 to the power 8 number of combinations can be formed, and these combination or these patterns of binary digits of 8 bit data will generate a specific instruction. For each pattern there will be some specific instruction. These set of instructions, these 256, there can be at maximum 256 instruction are called as instruction set. Okay, means data bus, it is represented its specification as 8 bit processor. Its data bus represent the processing power, means it can process at maximum 8 bit data in ALU. And instruction set, it can support at maximum 2 to the power 8 number of instruction by using data bus. Okay, now come in the address bus point. Address bus is of 16 bit strength. There are 16 lines to address the memory locations. Okay, I have given the material in first part of basic of microprocessor, that what does the meaning of address bus. By using 16 bits there will be 2 to the power 16 number of memory locations, which will be nearly equals to 64,000. Okay, 64,000, and there will be 8 bit registers at each location. Hence memory is represented in KB. That is 8085 memory will be of 64 KB. Means there are 64,000 number of locations in this microprocessor, and each location will have 8 bit registers. Each locations will have 8 bit registers. Okay, and how address bus and data bus are represented, or how data bus and address bus are represented in 8085 microprocessor. Okay, you know that 8085 microprocessor is a 40 pin IC. It is a 40 pin IC. I will give some detail about this pin configuration in another video.
and in this video I will discuss about these materials only. And if there what about a data bus and address bus in these pins, about out of 40 pins, means there are 8 pins. There are 8 pins dedicated for address bus and data bus. Huh? There are 8 pins which are dedicated both for address bus and data bus. Okay. What about another 8 bit of address bus? Means there are 16 bits in address bus and 8 bits are dedicated in conjunction with data bus. Okay. What about another 8 bit of address bus? Means there will be another 8 pins dedicated for higher order of addresses. Means A15, A14 dash dash dash, A8, then A7 dash dash dash, A1 and A0. Okay, these 8 pins A0 to A7, these are 8 pins, are called as low order memory address. Similarly, these 8 pins are called as high order memory address. High order memory address. Lower 8 bits are called as low order memory address. Higher 8 bits are called as high order memory address. Lower order A7 to A0 and D7 to D0. D7 to D0 are data bus. These are data bus. These A7 to A0 means low order memory address and D7 to D0 means data bus are multiplexed to 8 pins of 8085 microprocessor out of 40 pins. मतलब 40 पिन में से 8 पिन 2 काम करेंगे. पहला काम A7 से A0 लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को भी वो रिप्रेजेंट करेगा. दूसरा काम क्या करेगा, वो D7 से D0 डेटा बस को भी रिप्रेजेंट करेगा. क्योंकि डेटा बस की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 8 बिट की है. तो डेटा बस का तो पूरा हो गया काम विद द हेल्प ऑफ दीज 8 पिंस. But these 8 pins are also dedicated to low order memory bus. Okay, we will discuss it later. Now come in the high order memory address. What will be there will be another 8 bits of high order memory address which will be contributed by another 8 pins of 8085 microprocessor. मतलब उसमें 40 पिन है, 8085 में 40 पिन है. 8 पिन तो कंजक्शन में काम कर रहे हैं. कौन कौन से लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस और डेटा बस का, दोनों एक साथ काम करेंगे. और जो बचा हुआ 8 पिन है वो हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को दे दिया गया है और उसमें कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है. मतलब वो 8 पिन जो हैं वो सिर्फ A15 से A8 का ही हो, उनको एक काम दिया गया है ना. ये दोनों एक साथ कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया. तो दीज 8 पिन विच आर मल्टीप्लेक्स्ड विथ low order memory address and 8 bit data bus. Okay, hence these pins are called as multiplexed address and data bus. Okay, because low order memory address A7 to A0 and D7 to D0 8 bit data bus are multiplexed to 8 pins of 8085 microprocessor. Hence these pins are called as multiplexed address and data bus, which is denoted by AD7 to AD0. means अब यहां पर क्या A भी यूज किया हमने, D भी यूज किया. मतलब A फॉर एड्रेस, D फॉर डेटा. अगर ये लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस की तरह वर्क कर रहा है, एक समय में एक ही काम करेगा. मल्टीप्लेक्स भले है 8 पिन से कनेक्शन है D7 से D0 का भी, और उसी 8 पिन से कनेक्शन है A7 से A0 का, लेकिन एक समय में एक ही काम करेगा. या तो D7 से D0 8 बिट डेटा बस बना देगा, या A7 से A0 क्या बनाएगा, 8 बिट लो ऑर्डर मेमोरी बस बनाएगा. ठीक है, तो अगर ये लो ऑर्डर मेमोरी बस की तरह वर्क कर रहा है, ये 8 पिन जो मल्टीप्लेक्स्ड है, तो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा A7 से A0. अब अगर यही
पिंस डेटा बस की तरह वर्क कर रहा है तो किस में काम हो जाएगा, D7 से D0 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हु विल डिसाइड दैट दीज 8 पिंस आर फॉर 8-bit डेटा बस or for 8-bit low order memory address. Who will decide? For this purpose, there is a control signal which will come out from timing and control unit. I will discuss later in detail. Then this pin is dedicated to control signals of ALE. This control signal is known as ALE, address latch enable. ALE, address latch enable. If this pin is equals to 1, ओके, दिस इज हाई इनेबल पिन। अगर किसी कंट्रोल सिग्नल में बार नहीं लगा हुआ है ना, एक तो होता है जैसे देखो हम आगे बताएंगे आरडी बार होगा डब्ल्यू, अगर बार लगा है तो देन वो कंट्रोल सिग्नल्स लो इनेबल हो जाएगा। इसमें बार नहीं लगा है यानी कंट्रोल सिग्नल क्या है, हाई इनेबल है, यानी कि अगर वो आउटपुट 1 आएगा देन दिस सिग्नल विल बी इनेबल्ड। ओके, अब इसका नाम क्या है, एड्रेस लैच इनेबल, यानी कि ये एड्रेस को इनेबल कर देगा। ओके, इफ ALE इक्वल टू 1 यानी इनेबल हो गया, हाई इनेबल है, इनेबल हो चुका। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AD7 to AD0 है जिसको क्या बोला जाता है, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस बोला जाता है, these 8 pins will be converted in A7 से A0। मतलब क्या हो जाएगा, लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस बना देगा, लो ऑर्डर बाइट, लोअर बाइट बना देगा। 8 बिट है तो 8 बिट्स क्या बनता है, बाइट बनता है, तो लोअर बाइट बना देगा वो किसका, एड्रेस का। ओके, कब, जब ALE 1 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, अगर ALE 0 है, इफ ALE इक्वल टू 0 तब क्या हो जाएगा, वो डिसेबल हो गया। ALE क्या डिसेबल हो गया, डिसेबल होने का मतलब एड्रेस डिसेबल हो गया। देन व्हाट विल बी, देन these pins, these multiplex address and data bus will be converted in only data bus, 8-bit data bus and which is known as D7 to D0। तो ये डेटा बस की तरह काम करना शुरू कर देगा, और जब ALE 1 है तो ये लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो ALE डिसाइड करता है कि जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस है वो एज ए लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस की तरह काम करना है कि 8-bit डेटा बस की तरह काम करेगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, the hardware model of 8085 microprocessor. Okay, this is the hardware model of 8085 microprocessor. First of all, we will discuss the 3 major buses. What is buses? I discussed in part 1. There is no need to discuss again. Bus is a combination of bit patterns, or you can say the bus is a collection of electrical wires, electrical lines dedicated, and each wire or each electrical line can carry one single bit, 1 or 0. Okay, so there are 16 bits available for address, and these bits are called as 16-bit address bus. Okay, 16 bit है। अब इसमें जो एरो बना हुआ है, दिस 16-bit एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। इसका जो एरो है वो यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, क्यों यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि जब हमको अलोकेट करना होगा तो ये इसका पर्पज क्या, 16-bit एड्रेस बस का क्या पर्पज है, टू अलोकेट दी मेमोरी एड्रेस। या मेमोरी हमारा, अब मेमोरी में 64 KB की मेमोरी है 8085 में, तो देयर विल बी नियर अबाउट 64,000 नंबर ऑफ लोकेशंस, एंड टू अलोकेट दीज लोकेशंस है ना, ये स्टार्ट करेंगे क्योंकि 16-bit का एड्रेस है, ये फर्स्ट मेमोरी एड्रेस है एंड दिस इज लास्ट, तो कितना हो जाएगा, 64,000 नंबर ऑफ लोकेशन है नियर अबाउट। तो अगर हमको अलोकेट करना है तो वी नीड 16 बिट्स पैटर्न टू अलोकेट दीज लोकेशंस। तो ये अलोकेट का पर्पज किस लिए, टू अलोकेट दी मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पर एरो किसकी तरफ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी की तरफ रहेगा, और जबकि इधर अलोकेशन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शन होता है। ओके, अब आते हैं डेटा बस में। डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है। क्यों, 8-bit डेटा बस है ना, ये किसका, वही AD7 से AD जो मल्टीप्लेक्स वाले में है ये, तो D7 से D0 ये डेटा बस की तरह काम करेगा, यानी कि 8 लाइंस होंगी। ओके, अब ये बाई डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि जैसे कि मान लो अलोकेट हो गया डेटा, हमारा एक्चुअल डेटा यहाँ पर सेव है इस मेमोरी लोकेशन में, एंड वी हैव टू ट्रांसफर दिस डेटा टू ALU और एनी अदर रजिस्टर्स। ओके, तो जब ट्रांसफर करना है तब ट्रांसफर की मीनिंग होती है रीड, मतलब ट्रांसफर यहां से यहां तक जा सकता है, या किसी रजिस्टर से डेटा हमको यहां ले आना है
तो वो भी हो सकता है। तो ये दोनों देखो, दोनों की रिक्वायरमेंट है और इसी पर्पज से डेटा बस बाई डायरेक्शन होता है, जबकि एड्रेस बस यूनि डायरेक्शन होता है। ओके, अब देखो एक चीज और यहाँ पे बता दे रहे हैं, अगर डेटा रीड हो रहा है मेमोरी लोकेशन से तो इसको क्या बोलते हैं, ये है रीड ऑपरेशन, दिस इज रीड ऑपरेशन, है ना, यहां से डेटा रीड हो रहा है। अगर डेटा रजिस्टर से जा रहा है मेमोरी प्लेस पर तब क्या है, ये राइट ऑपरेशन है। तो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डेटा बस, एंड फॉर रीड एंड राइट पर्पज दिस डेटा बस will be bidirectional. Okay, now come to the third control bus. Control bus, ठीक है। control bus is for to generate a required signal to perform the processing according to the instruction given. ओके, तो जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग अगर इसको परफॉर्म करना है तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट विल जनरेट रिक्वायर्ड सिग्नल। सम रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल्स आर RD बार, लुक RD बार इज अ लो इनेबल, क्योंकि यहाँ बार लगा हुआ है, यानी कि अगर RD बार 0 हुआ देन रीड विल बी इनेबल्ड। दूसरा है WR बार राइट, ये भी बार लगा हुआ है, यानी कि अगर ये 0 हुआ देन राइट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड। ओके, ALE हमने अभी बता ही दिया है, ये भी कंट्रोल सिग्नल है। IO/M बार है ना। अब इसमें देखो दो फंक्शन है, एक ही पिन से इसको दे दिया गया है ना। ये क्या है, इनपुट आउटपुट, ये क्या है मेमोरी। तो मेमोरी के ऊपर क्या लगा, बार लगा, यानी कि अगर दिस इज इक्वल टू 0 इफ द आउटपुट ऑफ दिस पिन, ये सब क्या एक एक पिन पे दिए गए हैं, अगर इस पिन पर आउटपुट कितना आ रहा है, इस पिन पर सिग्नल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, देन द ऑपरेशन विल बी कंसर्न विथ मेमोरी, मतलब मेमोरी से रीड होगा या मेमोरी में राइट होगा। ये अगर दिस इज इक्वल टू 1, दिस पिन इज इक्वल टू 1, देन द ऑपरेशन विल बी कंसर्न टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब इनपुट से रीड होगा और आउटपुट में राइट होगा। ध्यान देना, हमने क्या बोला, इनपुट से रीड होगा, आउटपुट में राइट होगा। मतलब रीड होता है रीड फ्रॉम मेमोरी और इनपुट, और राइट टू मेमोरी, ध्यान देना, राइट टू मेमोरी और आउटपुट। मतलब रेफरेंस कहाँ रहेगा, रेफरेंस हमारा मेमोरी में, मेमोरी से रीड हो रहा है तो रीड फ्रॉम मेमोरी से रीड होगा या इनपुट से रीड होगा तो रीड फ्रॉम मेमोरी और रीड फ्रॉम इनपुट डिवाइस। जब राइट होना होगा तो राइट कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में राइट के लिए है। अगर तुम ये सोच सकते हो कि हम रजिस्टर में भी तो राइट कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी लैंग्वेज ये नहीं बोलेंगे, हम रजिस्टर में राइट हो रहा है नहीं, रजिस्टर में राइट हो रहा है फ्रॉम मेमोरी, यानी कि रीड हो रहा है फ्रॉम मेमोरी, उसके बाद राइट करने वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे रीड राइट की, विथ रेफरेंस टू ओनली मेमोरी, ध्यान रखना ओनली मेमोरी, रीड फ्रॉम मेमोरी राइट टू मेमोरी, रीड फ्रॉम इनपुट राइट टू आउटपुट। ओके, तो दीज ऑल अबाउट buses which are address bus, data bus and control bus. Okay, now come to the next part. There are two major parts in the architecture of 8085. First part, there is A is accumulator. This is a register, 8-bit register. This is 8-bit. What is the meaning of 8-bit register? There will be 8 flip-flops. There will be 8 flip-flops D0 to D7. Okay, तो इस रजिस्टर को क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोलते हैं। एक्यूमुलेटर की मीनिंग क्या होती है, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन करना। ओके, इसका पहला तो काम क्या है कि किसी भी डेटा को ये रीड कर सकता है, मतलब कि कोई भी डेटा को ये स्टोर कर सकता है यहाँ पर 8-बिट डेटा को। और दूसरा सबसे मेजर जो इसका काम है, ये रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होगा, प्रोसेसिंग होगी, अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉजिकल ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन अगर हो रहा है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। हर इंस्ट्रक्शन के बाद रिजल्ट आ सकता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन अपडेट हो रहा है, जो भी रिजल्ट अपडेट हो रहा है, दैट रिजल्ट विल बी सेव्ड इन एक्यूमुलेटर। मतलब वो हर इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन अगर रिजल्ट जनरेट हो रहा है, नया रिजल्ट आ गया तो देन पुराने रिजल्ट को ये क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। यानी कि अपडेट ये हमेशा अपडेट होता रहेगा। जो करंट में रिजल्ट जनरेट हुआ है, ठीक इंस्ट्रक्शन के ठीक पहले जो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो रिजल्ट यहाँ पर सेव होता रहेगा। ओके, दूसरा क्या है यहाँ ALU, इसको तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। इसमें अरिथमेटिक प्रोसेसिंग होती है, लॉजिकल प्रोसेसिंग है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉजिकल में हो गया, एंड आर नॉट वगैरह वगैरह सारे लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म होता है 8085 में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ही इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है इन
256 जो इंस्ट्रक्शन होंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा बस 8 बिट, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एडिशन परफॉर्म करा सकते हैं हम और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन परफॉर्म नहीं करा सकते विद द हेल्प ऑफ 8085। ध्यान रखना, जबकि 8086 जब आगे तुम लोग पढ़ोगे तो उसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी है। ओके, अब आते हैं एफ। एफ इज ए फ्लैग अनदर रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर। इसको क्या बोलते हैं? एफ है, यहाँ पे लिखा है ये क्या है? ये फ्लैग रजिस्टर है। दिस इज आल्सो 8 बिट रजिस्टर। देयर आर 5 फ्लैग्स इन डिटेल, देयर आर 5 फ्लैग्स, वी विल डिस्कस इन डिटेल फर्दर। ओके, नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन डिकोडर। व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन? नहीं, इसका नाम ही से पता चल रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन रिसीव होगा, इंस्ट्रक्शन कहां से रिसीव होगा? मेमोरी से रिसीव होगा। ओके, कितने इंस्ट्रक्शन होंगे? 256 इंस्ट्रक्शन में से कोई न कोई एक इंस्ट्रक्शन होगा। वो इंस्ट्रक्शन किससे बना है? डेटा बस से बना है। 8 बिट इसलिए 256 इंस्ट्रक्शन होंगे। तो एट ए टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन रीड होगा। वो इंस्ट्रक्शन रीड हुआ तो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन? तो कौन बताएगा? ये बताएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर। उसको डिकोड करेगा कि उस इंस्ट्रक्शन में मीनिंग क्या है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसके नंबर ऑफ मीनिंग भी होंगी। ठीक है, अकॉर्डिंगली अब ये जो भी ये रीड करे कहां देगा? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। और जो रीड करने के बाद, जो डिकोड करने के बाद इसने जो भी रिस्पांस दिया इस यूनिट को, तो इसके आंसर में ये कंट्रोल बस के थ्रू कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। जैसे रीड हो रहा हो कि राइट होना है, या जो भी ऑपरेशन होना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होनी है, उसको उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। और कंट्रोल सिग्नल जनरेशन के बाद रीड होगा कि राइट होगा, है ना, एली एग्जीक्यूट होगा कि क्या आगे IO ऑब्लिक M बार की स्थिति क्या होगी, वो सब इसमें S1 S0 और भी कई सारे कंट्रोल सिग्नल हैं, तो वो इसको डिसाइड करेगा। ओके, अब यहाँ आते हैं सेकंड पार्ट में, रजिस्टर अरेज। देयर आर नंबर ऑफ रजिस्टर्स, मेनली यू हैव डिस्कस्ड एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर आउट। मतलब इसके अलावा, इन दोनों रजिस्टर के अलावा देयर आर 6 जनरल पर्पज रजिस्टर आल्सो। देयर आर 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स आल्सो। ओके, BC DE HL। ओके, दीज आर जनरल पर्पज रजिस्टर, GPR इसको हम लोग बोलते हैं। 6 होते हैं, BC DE HL। B के साथ C ही लिखना है, D के साथ E लिखना है, H के साथ L लिखना है। B को लेफ्ट साइड, B D H को लेफ्ट साइड, C E L को राइट साइड ही लिखना है। कोई भी इसमें इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये फिक्स है। ओके, अब ये B रजिस्टर भी 8 बिट का है, C रजिस्टर भी 8 बिट का है, D रजिस्टर भी 8 बिट का है, E H L दीज ऑल 6 रजिस्टर्स आर ऑफ 8 बिट स्ट्रेंथ, 8 बिट के सभी हैं। ठीक है, अब यहां पर एक खास बात यह है कि जो इसको एक साथ रखा गया है, B के साथ C को रखा गया है, D के साथ E को रखा गया है, H के साथ L को रखा गया है, इसका पर्पज है। इसका पर्पज ये है कि अगर तुम्हारा डेटा बस 8 बिट का तो ही है, अगर प्रोसेसिंग 8 बिट की हो रही है तो कोई बात नहीं, हमारा फर्स्ट डेटा B में रख लिया और सेकंड डेटा किसी एक में रख दिया, हाँ एडिशन कर। लेकिन अगर हमारा डेटा ही 16 बिट का है, मान लो हमको 16 बिट डेटा का यूज करना है, तो उसके लिए वी नीड 16 बिट रजिस्टर, जबकि 16 बिट रजिस्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है फॉर प्रोसेसिंग पर्पज के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम रजिस्टर पेयर यूज करते हैं, आरपी रजिस्टर पेयर यूज करते हैं। अब ये क्या है? बी के साथ जो पेयरिंग करेंगे, बीसी इज द रजिस्टर पेयर। यानी अगर हमको 16 बिट डेटा का यूज करना है तो हमको वी हैव टू यूज बी के साथ सी यूज करेंगे, डी के साथ ई यूज करेंगे, एच के साथ एल यूज करेंगे। यानी कि देयर आर 3 रजिस्टर पेयर। पहला क्या है? बीसी रजिस्टर पेयर, दूसरा कौन सा? डीई रजिस्टर पेयर, तीसरा कौन सा? एचएल रजिस्टर पेयर है। ठीक है, जब बीसी रजिस्टर पेयर की बात करें तो बी रजिस्टर विल स्टोर द हायर बाइट ऑफ 16 बिट डेटा, हायर बाइट ऑफ 16 बिट डेटा, एंड सी रजिस्टर विल स्टोर लोअर 8 बिट ऑफ 16 बिट डेटा। यानी लोअर बाइट सी में जाएगा और हायर बाइट बी में जाएगा। इसी तरह से डी में हायर बाइट, ई में लोअर बाइट, एच में हायर बाइट, एल में लोअर बाइट। ठीक है, अब यहां पर एक स्पेशल रजिस्टर पेयर है IHL। एचएल ये सब तो काम करता ही करता है, लेकिन साथ में एक और काम करता है एचएल रजिस्टर पेयर, मेमोरी एड्रेस को भी ये सेव करता है। जैसे इंस्ट्रक्शन में, जब भी इंस्ट्रक्शन हम तुम लोग प्रोग्राम जब करोगे तो उसमें एक लेटर यूज होता है M, तो M जहां भी यूज होगा मतलब मेम फॉर मेमोरी। अब मेमोरी तो 64,000 है, उन 64,000 में से किस जगह पर, तो वो कौन बताएगा? HL, क्योंकि एड्रेस हमारा कितने बिट का है?
16 बिट का है, तो 16 बिट की जरूरत पड़ेगी तो H हायर बाइट यूज करेगा और ये L लोअर बाइट ऑफ एड्रेस बस यहाँ सेव कर लेगा। तो HL रजिस्टर पेयर का काम क्या होगा, टू अलोकेट दी रिक्वायर्ड मेमोरी एड्रेस, यानी कि जहां पर ये लेटर यूज होगा उसके ठीक पहले HL में जो भी डेटा पैटर्न होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज 16 बिट एड्रेस बस ऑफ दैट डेटा। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ रजिस्टर एरेज। ओके, नाउ मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर। मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर क्या है, एक सिंपल सा काम है कि मेमोरी को वो पॉइंट करता है ना, ये जो भी रिक्वायर्ड जब एड्रेस हो जाएगा उसको रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन में उसको अलोकेट कर देगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर का मतलब क्या, फ्लैग मतलब क्या होता है, फ्लैग मतलब झंडा है ना, यानी कि वो एक्यूमुलेटर जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट हमेशा अपडेट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन अपडेट हो रहा है, अगर नया रिजल्ट आ रहा है तो यहाँ पर सेव होता रहेगा। ठीक है, अब रिजल्ट का कैसा उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसका किस तरह का रिजल्ट है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन फ्लैग रजिस्टर। वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हमारा रिजल्ट का स्टेटस कैसा है, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फ्लैग रजिस्टर में सेव होगा। अब फ्लैग रजिस्टर जिस तरह से और सारे रजिस्टर हैं वो 8 बिट के हैं, तो यहाँ पर भी 8 बिट का रजिस्टर है, और लेकिन 8 बिट में सिर्फ 5 ही फ्लैग यूज होते हैं, बाकी यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है 3 जगह, वो अनयूज्ड है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो S के बाद Z है, फिर क्रॉस है, फिर AC लिखा है, फिर क्रॉस है, फिर P लिखा है, फिर क्रॉस है, फिर CY लिखा है, ये सीक्वेंस तुमको याद करना पड़ेगा। इसी सीक्वेंस में इसको लिखना है। D0 आखिरी जो LSB है वो D0 CY रहेगा, D7 में S रहेगा, इसी तरह जो लिखा है उसी तरह से ही इसको रखना है। ओके, देयर आर 5 फ्लैग्स, कौन कौन से हैं हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। S इज साइन फ्लैग। अब साइन फ्लैग का मतलब क्या है, जब भी साइंड ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि जब भी निगेटिव ऑपरेशन भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें निगेटिव नंबर भी होंगे तब साइंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और अगर निगेटिव नंबर है, यानी कि इफ निगेटिव कैसे डिसाइड होगा, पहली बात माइक्रो प्रोसेसर वंस कॉम्प्लीमेंट में परफॉर्म करता है या टूस कॉम्प्लीमेंट में करता है। तो इसका क्यों ऐसा, क्योंकि जब भी साइंड ऑपरेशन हो रहा होता है तो हम निगेटिव नंबर्स को वंस कॉम्प्लीमेंट में या टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, निगेटिव नंबर जितने होंगे उसमें MSB में 1 आ जाएगा और पॉजिटिव में MSB 0 हो जाएगा। तो अगर S इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी इस फ्लैग में, ये फ्लैग है, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, इस फ्लैग में S फ्लैग में अगर 1 हो गया, यानी कि इट इज सेट टू 1, देन निगेटिव नंबर हो गया। निगेटिव नंबर के लिए सेट हो जाता है और रीसेट होगा कब, जब ये यहाँ पर नंबर हमारा कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया है अगर वो निगेटिव है तो S इक्वल टू 1 होगा। निगेटिव ये कैसे सेंस करेगा, ये निगेटिव रिजल्ट है, MSB को चेक करेगा, एक्यूमुलेटर के MSB को चेक करेगा। अगर MSB में 1 है देन इट विल बी सेट टू 1। अगर MSB में 1 है तो ये निगेटिव नंबर बता देगा, अगर MSB में 0 हो तो ये बताएगा पॉजिटिव है, तो अकॉर्डिंगली ये सेट या रिसेट हो जाएगा। 0 फ्लैग में आते हैं, ये सारे फ्लैग सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर को ही देखेंगे। 0 फ्लैग Z will be set to 1 if and only if all bits of accumulator equals to 0, यानी कि सारे बिट 8 बिट होते हैं, 8 बिट 0 0 0 0 0 हो जाए तब ये सेट हो जाएगा। ध्यान देना 0 होने पर सेट होगा, अदरवाइज ये रिसेट होगा। अगर एक भी बिट 1 आ गई, 8 में से एक भी बिट में अगर 1 लिख गया तो ये क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। इसी तरह आते हैं ऑक्सिलरी कैरी। अब ऑक्सिलरी कैरी में जब हम एडिशन करते हैं जैसे BCD एडिशन जब करते हो यहाँ पर, जैसे मान लो 5 3 के बाद हमने कर दिया AB है ना, हेक्साडेसिमल पैटर्न में। B का मतलब 11, 11 प्लस 3 14। अब 14 नहीं, यहाँ पर नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ करते हैं हम डील कर देते हैं, ठीक है। अब ABC, A 10, B 11, C 12, D 13, तो 13 प्लस 3 16। अब 16 माइनस 0, 1 कैरी आ गया, यानी कि ये क्या है, ये ऑक्सिलरी कैरी है। अगर हमारी D3 से D4 में अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो देन AC विल बी सेट, अदरवाइज रीसेट। ओके, सिमिलरली पैरिटी में, पैरिटी फ्लैग कब सेट होगा, जब इवन पैरिटी है, नंबर ऑफ वंस आर इवन, 1 है तो सेट हो जाएगा, अदरवाइज रीसेट। कैरी फाइनल कैरी अगर यहाँ पर कैरी आ रही है, रिजल्ट में 1 आ रहा है, देन इट विल बी सेट और रीसेट। ओके।